Hello everyone, welcome to another case study. And this time I'm taking the case study from Unit 2 of Class 11 and the title is An Entrepreneur. और बच्चों जो आज हम केस स्टडी लेने वाले हैं वो है स्टीव जॉब्स एंड एप्पल. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी और जिससे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हर केस स्टडी का पर्पस आपको सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज देना है so that you can understand the subject and you can write very well in the examination. तो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से और क्वेश्चन ये है कि क्या आप स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में ए टू जी सब जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले कि कैसे उन्होंने एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन को क्रिएट किया, how he had taken it to great heights and other challenges in the life that he had faced while he was alive on this earth. तो अगर आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर्स जानने हैं तो यू शुड स्टिक टू दिस केस स्टडी. और बच्चों केस स्टडी जब आप पूरी पढ़ लेंगे तो लास्ट में आई एम गोइंग टू आस्क यू 10 questions from the case study, which those 10 questions are going to serve you very well in the examination and they are going to be very helpful for you. So stay tuned, watch the video till the end and get extremely benefit. तो start करते हैं case study 2 and the unit is an entrepreneur. And here comes the content. So but these are the points under discussion that I'm going to raise in this specific case study. And the first point is introduction. Second point is founding Apple. Third point is Steve Jobs was the first entrepreneur to understand personal computer. John Scully, insanely great campaign, exit from his own company, Next and Pixar, back to Apple and health issues. So बच्चों आप स्टीव जॉब्स के बारे में सब कुछ जान लेंगे based on these 9 points. So what you are waiting for? Let's start today's case study and get extremely benefited. And here comes the first point. So बच्चों let's take the introduction. हम यहाँ पर बात करेंगे उनके बर्थ की और एप्पल की स्टार्ट. स्टीव जॉब्स इन फुल, स्टीवन पॉल जॉब्स Stephen Paul Jobs, born on February 24th, 1955, in San Francisco, California, US, and died on October 5th in 2011 in Palo Alto, California. और बच्चों ये सब कुछ जो स्टीव जॉब्स ने क्रिएट किया ये सिर्फ 56 इयर्स की लाइफ में उन्होंने क्रिएट कर दिया. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है और स्टीव जॉब्स के भी वर्ड्स यही थे दैट entrepreneurs they start early. उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया लाइफ में entrepreneur बन के काम को and later on he became a very successful entrepreneur and died at the age of 56 years. And I believe it is a very young age for a person to die. So ये बहुत important आपको इससे learning मिलती है that how energetic, enthusiastic and in love with his profession he was. Second point, he was the founder of Apple Computers Inc., now Apple Inc., and an amazing entrepreneur, a charismatic pioneer of the personal computer era. तो बच्चों जो स्टीव जॉब्स है इनको एप्पल कंप्यूटर्स का फाउंडर को फाउंडर माना जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल हैं
यू नो पर्सनल कंप्यूटर ईरा की स्टार्टिंग के लिए. Before him, nobody had encouraged, the usage of computers, in every home. तो इन्होंने एक, न्यू बिगनिंग दी टू पर्सनल कंप्यूटर, और एक नए युग की शुरुआत हुई इनके साथ. और बच्चों, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा विच आई बिलीव आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये है पीए पॉइंट्स, मैंने कहता हूँ पे अटेंशन. कई बार बच्चे पूछ लिया जाता है कि इंक स्टैंड्स फॉर व्हाट. तो इंक का मतलब है, इट्स एन एब्रीविएशन फॉर इनकॉर्पोरेटेड. जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, तो इनकॉर्पोरेटेड पूरा ना लिख के इंक लिख दिया जाता है. यूज इन द नेम ऑफ यूएस कंपनीज दैट आर लीगली एस्टैब्लिश्ड. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे. आई जस्ट ट्राई टू लिंक इट, या नो, हियर एंड हियर. तो ये लिंक हो रहा है यहाँ पे. इंक जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है इनकॉर्पोरेटेड. जो लीगली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं यूएस में, उनके पीछे एब्रीविएटेड इनकॉर्पोरेटेड लगाया जाता है, दैट इज आईएनसी डॉट. So he was the co-founder of Apple Computers Inc., now Apple Inc., and an amazing entrepreneur, a charismatic pioneer of, you know, the encourager of computer era. तो इनके कंप्यूटर्स की फील्ड में काम करने के बाद ही, ये इरा स्टार्ट हुआ, वेयर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, वांट्स टू हैव अ कंप्यूटर एट होम, so that they can become, extra productive. So this is introduction. Let's move on to the next point. Founding of Apple. Job was raised by adoptive parents. तो ये देख लीजिए बच्चों, एक another very very important point, that he was raised by adoptive parents. इन्हें adopt किया गया. In Cupertino, California, located in what is now known as Silicon Valley. Though he was interested in engineering, his passion of youth varied. वो बनना तो इंजीनियर चाहते थे, बट उनका पैशन, became something different when he grew up. जब उन्होंने 12th किया, मतलब हायर सेकेंडरी किया इन आर कंट्रीज टर्म्स, तो उन्होंने एक रीड कॉलेज था, वहां पे एडमिशन लिया. तो जो थर्ड पॉइंट है वो उसी के बारे में है. ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड, Oregon, took a job at Atari Corporation as a video game designer in early 1974, and saved enough money for a pilgrimage to India to experience Buddhism. तो बच्चों, उन्होंने 12th के बाद जब रीड कॉलेज ज्वाइन किया, तो वहां से ड्रॉप आउट थे, उन्होंने वो से छोड़ दिया था. और छोड़ने की मुख्य वजह ये थी कि हिज नॉलेज and his vision towards his learning. वही कहते थे कि जो भी मैंने ये 12th तक पढ़ा है, अगर मैं इसको प्रॉपरली यूज कर पाऊंगा, तो आई कैन क्रिएट बिग कंपनीज. सो अंडर दैट इम्प्रेशन ही लेफ्ट हिज स्टडीज एट रीड कॉलेज, एंड he joined Atari Computers in 1974, saved enough of money so that he can visit India in search of or experiencing Buddhism over there. So he became a spiritualist after that. एंड इट्स अ स्टोरीज के लिए मैंने आपके साथ एक पे अटेंशन पॉइंट बनाया है. नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. हिज विजिट टू कैची धाम आश्रम इन नैनीताल. Job was deeply influenced by the Indian spiritualism in 70s, that is 74, 75, and visited कैची धाम आश्रम in नैनीताल. आपने सुना होगा इनके बारे में. In the state of Uttarakhand, the ashram of Baba Neem Karoli, and he is believed to have got the vision at this place to create Apple. तो बच्चों, अगर आप कैची धाम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ से इंस्पायर हुए हैं एंड दे हैव मेड देयर फॉर्च्यून, तो यू कैन डू सम deep rooted research on this. Are we getting it? Next point. After visiting, getting enlightened from India and Neem Karoli Baba, he went back to Silicon Valley. Fourth point. Back in Silicon Valley in the autumn of 1974, Jobs reconnected with Stephen Wozniak.
उनके जो मित्र थे स्टीफन वॉजनियक, को फाउंडर ने इसलिए कहा जाता है कि वन फाउंडर इज स्टीव जॉब्स हिमसेल्फ एंड अनदर फाउंडर इज स्टीव वॉजनियक. So back in Silicon Valley in the autumn of 1974, Jobs reconnected with Stephen Wozniak, a former high school friend who was working with HP. HP की full form आप जानते होंगे, Hewlett Packard Company. वो वहां पर काम कर रहे थे उस टाइम. So he met him, and it was the advent or inception of Apple computers. Fifth point. When Wozniak told Jobs of his progress in designing his own computer logic, तो जिस टाइम पर स्टीव जॉब्स वॉजनियक से मिले, उस टाइम पर वॉजनियक वाज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर लॉजिक बोर्ड, और उसके बारे में उन्होंने स्टीव जॉब से बात. 6 पॉइंट. जॉब सजेस्टेड that they go into a business together, which they did after Hewlett Packard formally turned down Wozniak's design in 1976. तो जब उन्होंने अपनी कंपनी को वो डिजाइन प्रेजेंट किया लॉजिक बोर्ड पर, तो एचपी ने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो स्टीव जॉब्स ने कहा देयर इज नो नीड टू वरी, व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. और बच्चों याद रखना मेरी बात, तो इस बात को हमने आपने सारी जिंदगी याद रखना है कि जब रिजेक्शन लाइफ में आती है ना, रिजेक्शन, तो जो एक एंटरप्रेन्योर है ना, वो इसे रीडायरेक्शन मान, कि कोई बात नहीं, अगर आपने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, वी वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वी नो हाउ टू गेट रीडायरेक्टेड एंड कीप आवरसेल्व्स ऑन ट्रैक. तो हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो रिजेक्शन होती है वो रीडायरेक्शन का काम करती है. अदरवाइज एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी एंड टेकिंग इट टू ग्रेट हाइट्स एंड मेकिंग इट अ मल्टीनेशनल इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, and only a person with this mental ability and attitude can reach to these great heights. तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है यहाँ, और दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स. लेट्स मूव ऑन. 7th point. The Apple One, as they called the logic board, was built in Jobs' family garage with money they obtained by selling his Volkswagen minibus and Wozniak's programmable calculator. तो बच्चों, जो इन्होंने एप्पल वन बनाया था, जिसे वो लॉजिक बोर्ड कहते थे, वो उन्होंने अपने फैमिली गैराज में, स्टीव जॉब्स के फैमिली गैराज में बनाया. और जो पैसा उसके लिए उन्होंने जोड़ा था, वो जोड़ा था स्टीव जॉब्स की वोक्सवैगन मिनी बस इसको बेच के, और वॉजनिएक के प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर को बेच. तो उन्होंने अपना पहला लॉजिक बोर्ड बनाया, पहला कंप्यूटर बनाया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. एक जगह पर स्टीव जॉब्स बड़ी अच्छी बात कहते थे. वो कहते थे कि अ, अगर हम अपनी बस को बेच दे, तुम्हारे कैलकुलेटर को बेच दे, और उसके बाद भी अगर हम कुछ अर्न करेंगे ना, तो वी आर नॉट एट लॉस, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज. वी जस्ट हैव टू गो इनटू द मार्केट, present our idea, and if the idea gets clicked, it can be the beginning of a new era, and this is what has happened. तो अब चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों. 3rd point. Steve was the first entrepreneur to understand personal computing. अब जो पर्सनल कंप्यूटर आज सबके घर में है, तो उनकी जो विजन थी वो यही थी कि मैं एक कंप्यूटर को दुनिया के हर घर तक पहुंचाना चाहता हूं. एवरीबॉडी शुड यूज कंप्यूटर. वो एक विजन था टू मेक पीपल प्रोडक्टिव, टू सेव देयर टाइम, एंड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस. तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे. जॉब्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स टू अंडरस्टैंड दैट द पर्सनल कंप्यूटर वुड अपील अ ब्रॉड ऑडियंस. और बच्चों, इसको आज तो बहुत एप्लीकेशंस है, बहुत सॉफ्टवेयर्स है, बट जो स्टीव जॉब्स का आई कॉल इट पर्सपेक्टिव था, वो ये था टू मेक पीपल्स लाइफ कंफर्टेबल, to make people's life comfortable. And this one perspective of an entrepreneur in real sense of the word makes him an entrepreneur. Are you getting it?
अगर आपके प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं है। और यहाँ पे वो खुद लिख रहे हैं कि इट इज गोइंग टू अपील टू अ ब्रॉड ऑडियंस, बहुत सारे लोग इसको पसंद करें क्योंकि ये लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करे। तो बच्चों हमेशा अच्छा, ड्यूरेबल, राइटली प्राइस प्रोडक्ट और जो आपकी जिंदगी में कंफर्ट्स लेके आएगा, आप हमेशा उस प्रोडक्ट की रिपीट सेल्स करें एंड कंपनी इज गोइंग टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। Second point, with Jobs' encouragement, Wozniak designed an improved model, the Apple II, complete with a keyboard. उसमें फिर कीबोर्ड भी ऐड किया गया एंड दे अरेंज टू हैव अ स्लीक मोल्डेड प्लास्टिक केस मैन्युफैक्चर टू एनक्लोज द यूनिट। तो धीरे धीरे बच्चों, पहले आप हमेशा रॉ स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जब आपको अपनी कमियां पता चलने लग जाती हैं तो आप जो भी चीजें नॉन रिक्वायर्ड होती हैं उसे अपने प्रोडक्ट में से रिमूव कर देते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स कमिंग। तो उन्होंने जब देखा कि भाई एप्पल वन में कुछ कमियां हैं, कीबोर्ड नहीं है प्रॉपर, तो उन्होंने कीबोर्ड बनाया, एप्पल टू डिजाइन किया एंड इट वाज अ बेटर कंप्यूटर देन अर्लियर वन। तो जब भी ग्रोथ होगी तो वो स्लो ग्रेजुअल हो, रैपिड ग्रोथ कभी नहीं होगी। Let's move on to the next point. Third point. Jobs managed to obtain financing, distribution, and publicity for the company. Apple Computers Incorporated in 1977, the same year that the Apple II was completed. अब बच्चों देखिए, जो ब्रेन बिहाइंड कंप्यूटर था वो थे स्टीव वॉजनियक. He was the one who was, building logic boards and improving them, making keyboards, improving them, and the brain behind marketing, the brain behind, convincing investors is of Steve Jobs. So Jobs managed to obtain financing, distribution, and publicity for the company Apple Computer in 1977, the same year that Apple II was complete. तो ये आपको बड़े ध्यान से इस चीज पर फोकस करना है. He was not the one who was making computers. He was the one who was taking computers to people. Fourth, the machine was an immediate success, becoming synonymous with the boom in personal computers. तो वो एकदम immediately successful हो गई और लोग शायद इसी चीज का वेट कर रहे थे and it became, a great growth in the field of personal computers. Fifth point. In 1981, the company had a record-setting public stock offering, and in 1983, it made the quickest entrance to that time into Fortune 500 list of America's top companies. तो बच्चों Fortune 500 ग्लोबल अमेरिका की टॉप कंपनीज में वो आ गए थे और 81, बहुत बहुत ज्यादा टाइम को नहीं लगा. तो इसका मतलब क्या था कि स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी एंड his vision was meant for providing people a good product which they are already in need. तो जब भी आप एक एंटरप्रेन्योर के फीचर्स या ट्रेड्स की बात करेंगे, दिस इज वन ऑफ द ट्रेड्स. तो 81 में वो अमेरिका की फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ टॉप पेरिंग कंपनीज में आ गए थे एंड दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर सच अ स्मॉल कंपनी स्टार्टेड बाय टू पर्संस. वन वाज स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ और इस बात को आपने सारी जिंदगी याद रखना और बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये है कि जब दो ब्रेन्स सिंक होते हैं और एक दिशा में सोचते हैं तो ऐसी कंपनीज क्रिएट होती हैं. याद रखिएगा इसको. तो जब दो ब्रेन्स सिंक होकर एक दिशा में सोचते हैं तो दे कैन क्रिएट दिस बिग कंपनी. और बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट की हैं एंड टुडे दे आर वेरी दे आर वर्किंग वेरी वेल एंड दे आर ऑन ग्रेट हाइट्स. आगे चलते टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब बच्चों एक नए कैरेक्टर की एंट्री है यहाँ पे और वो है जॉन स्कूली. मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. ही इज द वन, जॉन.
जॉन स्कली फ्रॉम पेप्सी। यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट स्टोरी आप ले लीजिए, एनेक्डोट ले लीजिए यहाँ पे जो एसोसिएटेड है, वो ये है कि इन 1983 द कंपनी रिक्रूटेड पेप्सी को इनकॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट जॉन स्कली to be its chief executive officer and implicitly Jobs' mentor in the fine points of running the large corporation। तो जॉब्स ने सोचा कि मुझे अब मेरा काम बढ़ रहा है, तो why not to hire a person who is holding great experience in selling and marketing। तो जॉन स्कूली was from PepsiCo, और स्टीव जॉब्स ने उनको कंपनी में पोजीशन दी, बहुत अच्छी सैलरी दी, एंड ही वाज बीइंग हायर्ड एज एन इम्प्लिसिटली का मतलब इनडायरेक्टली ही वाज जॉब्स मेंटर, कि वो गाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ कंपनी को ग्रो कराना है और कैसे ग्रो कराना है, कैसे सेल्स करना है, कैसे मार्केटिंग करना है। तो जॉन स्कूली वाज बीइंग हायर्ड। तो अब पहले दो थे, तो अब तीन हो गए हैं, एंड जॉन स्कली इज वन ऑफ। अब ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे ब्लू से मार्क किया हुआ है। जॉब्स हैड कन्विंस स्कली टू एक्सेप्ट द पोजीशन बाय चैलेंजिंग हिम। स्कली मान नहीं रहे थे, और जॉब्स ने उनको चैलेंज किया। और चैलेंज कैसे किया? बहुत ही बच्चों ये मशहूर स्टेटमेंट है जो स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली के लिए यूज की थी, और इससे पता चलता है उनकी पावर ऑफ नेगोशिएशन एंड परसुएशन। परसुएशन होता है कि किसी को कन्विंस करना। तो उन्होंने कहा था उनको कि भाई क्या सारी जिंदगी मीठा पानी बेचना है? कम, ज्वाइन एप्पल एंड चेंज द वर्ल्ड। तो ये देखिए वो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, डू यू वांट टू सेल शुगर वाटर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? एंड ही सेड नो, so join Apple. The line was shrewdly effective, but it also revealed Jobs' own belief in the computer era and revolution. तो बच्चों जब आप अपने प्रोडक्ट पर बिलीव करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, लाख रुपए की बात आपको बता रहा हूं कि जब आप अपने खुद के प्रोडक्ट पर बिलीव करते हैं, तो दुनिया को आप मजबूर करते हैं उस पर बिलीव करने के। और जब आप अपने खुद के प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं करते, तो नोबडी एल्स बिलीव्स ऑन योर प्रोडक्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है एप्पल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स है ना डिफरेंट ली है इस पर अलोंग विद स्टीव। अब एक टर्म है इनसेनली ग्रेट। बच्चों इनसेनली ग्रेट का मतलब है टू एन एक्सट्रीम डिग्री ही बिलीव्स इन ग्रेटनेस। टू एन एक्सट्रीम डिग्री ही बिलीव्स इन ग्रेट। तो बच्चे ड्यूरिंग दैट सेम पीरियड जॉब वाज हेडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन द कंपनीज हिस्ट्री। उसी दौरान जॉब कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। In 1979, he led a small group of Apple engineers to a technology demonstration at the Xerox Corporation, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Palo Alto Research Center, to see how the graphical user interface could make computers easier to use and more efficient. Both computers were redesigned to exploit and refine the Palo Alto Research Center ideas, but Jaws was explicit in favoring the Macintosh or Mac as a new computer became known। तो बच्चों ये अपनी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट का नाम था कि उसका पर्पस था कि दे हैव टू विजिट टू पेलो आल्टो रिसर्च सेंटर जेरोक्स का, और वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व करना था कि कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज मेकिंग कंप्यूटर्स टू वर्क बेटर। और कहा यह भी जाता है कि फ्रॉम देयर ही गॉट एन आइडिया टू इन्वेंट द माउस ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम जीरोक्स। तो आप देखिए नीचे थर्ड पॉइंट में लिखा है, बोथ कंप्यूटर्स एप्पल 1 एप्पल 2 वर रीडिजाइन टू एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज, एंड रिफाइन द पार्क आइडिया। जो पार्क से उन्होंने आइडियाज लिए, उनको उन्होंने
एप्पल 1 और एप्पल 2 में डाला ताकि वो उनसे बेटर क्रिएट कर सके। व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम देयर फ्रॉम जेरोक्स दे कैन क्रिएट बेटर हियर। But Jobs was explicit in favoring the Macintosh or Mac as a new computer became known. तो जॉब्स ने कहा कि हम इसको नया नाम देंगे अपने कंप्यूटर को, एप्पल 1 एप्पल 2 नहीं, अभी सब कहेंगे मैकिनटॉश। तो आज भी नाम चल रहा है जिसे हम मैक के नाम से जानते हैं। मैकबुक हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमें शायद नहीं पता होता कि एप्पल 1 एप्पल 2 गॉट रीनेम्ड एज मैकिनटॉश बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन एट Xerox Palo Alto Research Center, and whatsoever their learning was वो उन्होंने अपने computers में डाले, and then they re-refined it and made a better version of computer. So insanely great was his perspective of his products. Let's move on to the next point. और बच्चों यहाँ एक important बात है आगे चलने से पहले। देखिए, मैं जब रिसर्च कर रहा था इस स्पेसिफिक केस स्टडी के ऊपर तो मुझे कुछ चीजें बड़ी बड़ी अच्छी लगी और मैं आपके साथ उन्हें शेयर भी करना चाहूंगा। और ये स्टीव जॉब्स की ना सैंडल्स हैं जो पहनते थे। अब आप देख सकते हैं द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज इन हिज प्रोडक्ट्स एज। तो ये मैं स्पेसिफिकली आपके लिए इससे लेकर आया हूं दैट इफ यू आर बिकमिंग सिंपल सो यू आर बिकमिंग फाइन, यू आर बिकमिंग बेटर। कॉम्प्लेक्सिटी में हम बेटर नहीं बन सकते, हम सिंप्लिसिटी में बेटर बन सकते हैं। और बच्चों इन्होंने सैंडल्स और चप्पल्स तो बहुत रेयरली पहनी है, ज्यादातर ही यूज्ड टू मूव अराउंड बेयर फुटेड, नंगे पैर घूमते। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। और एक कुछ और एक दो चीजें और दिखाना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड बच्चों। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको लेके जाना चाहूंगा। ये देखिए, ये इनका घर था और आप देखिए हाउ ही सिटिंग ओवर हियर, जमीन पे बैठ। और बच्चों इन्होंने सारी जिंदगी ये टर्टल नेक ब्लैक टी शर्ट, डेनिम और ये स्पोर्ट्स शूज, तो यही तीन एक चीजें पहनते थे। ब्लैक टर्टल नेक, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू डेनिम एंड शूज। और इनके पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ पेयर्स थे। पर इनका बेस्ट कलेक्ट, ये कहते थे कि ना मेरे पास टाइम नहीं है अपने कपड़े चेंज करने का, तो आई एम कंफर्टेबल व्हाट आई एम वेयरिंग। आप कोई भी इनकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इट इज ऑलवेज इन दिस। तो दिस इज अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम दिस पर्सनैलिटी। तो लेट्स मूव ऑन। तो हम जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि इंसान बड़ा नहीं होता, द वे ही हैंडल्स चैलेंजेस वो उसे बड़ा बना। एक बड़ा इंसान वो है बच्चों जो बड़े बड़े चैलेंजेस को ना बगैर किसी स्ट्रेस के ओवरकम कर सके। तो यहां पर वही है, एग्जिट फ्रॉम हिज ओन कंपनी। हाउ एवर द फर्स्ट मैक्स जो मैकिनटॉश थे वर अंडर पावर्ड एंड एक्सपेंसिव एंड दे हैड फ्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो एक्सपेंसिव भी थे, उनमें पावर भी कम जाती थी, मतलब पावर कम लगती थी, और एप्लीकेशंस भी कम थी। ऑल ऑफ विच रिजल्टेड इन डिसअपॉइंटेड अपॉइंटिंग सेल्स। तो सेल्स कम हो रहा था उस वजह से। तो स्टीव जॉब्स वाज वर्किंग ऑन इट कि उसे इंप्रूव किया जा सके ताकि सेल्स ग्रो हो सके। Apple steadily improved the machine so that it eventually became the company's lifeblood, कि कंपनी इससे पैसा कमा सके, as well as the model for all subsequent computer interfaces। और सारे कंप्यूटर इंटरफेसेस में इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाए। बट बट Jobs' apparent failure to correct the problem quickly led to tensions in the company। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत यूनिक पॉइंट है। देखिए, but Jobs' apparent, just let me search, here it is। But Jobs' apparent failure to correct the problem, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर वो ये है, क्विकली लेड टू टेंशन द कंपनी। अब खर्चे बढ़ रहे थे, सेल्स आ नहीं रही,
तो जॉन स्कूली वाज ऑफ अ माइंड कि भाई जल्दी जल्दी काम होना चाहिए ताकि सेल्स जल्दी है, एंड ही वाज a believer of simplicity, insanely great products, तो उसमें टाइम लगा. In 1985, Scully convinced Apple board of directors to remove the company's famous co-founder, asked him to leave the company, so exit from his own company created by him, the person whom he hired himself. No, made him to move out of the company. पर कहानी यही खत्म नहीं होती है बच्चों. अभी तो आपको बहुत सारे आंसर्स जानने हैं. कहानी यही खत्म नहीं होती. कहानी खत्म होती है एप्पल की ग्रोथ के साथ. तो आगे चलते हैं. 7th पॉइंट, स्टीव जॉब्स को कौन रोक सकता है? स्टीव जॉब्स को रोकना नामुमकिन. उन्होंने कहा कोई बात नहीं. उन्हें कुछ हफ्ते रिलैक्स किया, सोचा. देखिए, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, थिंकिंग. थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हें सोचा कि कहाँ गलती रहे. तो उन्होंने कोई बात, एप्पल गया तो गया, अब मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम. देन ही स्टार्टेड नेक्स्ट एंड पिक्सल. और बच्चों, आप इन कंपनीज को जानते हो. ये कंपनीज आर वेरी इन इक्वली फेमस एज एप. और इनको ना एक वरदान था भगवान की तरफ से, मिडास टच. ये किसी भी बिजनेस को टच करते थे ना, ये उसको ग्रोथ पे ले आता है. बिकॉज हिज विजन. ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से. इनकी जो विजन थी वो थी टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स विच कैन मेक द कस्टमर्स लाइफ इजी. दैट्स इट. सिर्फ ये. और उससे आप देख लीजिए. तो अब बात करते हैं 4 पॉइंट्स पर. जॉब्स क्विकली स्टार्टेड अनदर फर्म, नेक्स्ट इंक, डिजाइनिंग पावरफुल वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स फॉर द एजुकेशन मार्केट. उन्होंने नेक्स्ट करके पावरफुल वर्कस्टेशंस बनाने शुरू किए कंप्यूटर्स के, फॉर एजुकेशनल मार्केट. Meanwhile, in 1986, Jobs acquired a controlling interest in Pixar. इन्होंने पिक्सर को भी टेक ओवर कर लिया. A computer graphics firm that had been founded a division of Lucas Films Limited. तो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स की फर्म थी, और दे वर मेकिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिजाइन्स दैट. तो इन्होंने उसको टेक ओवर कर. ओवर द फॉलोइंग डिकेड, जॉब उन 10 सालों में, जॉब्स बिल्ड पिक्सर इनटू अ मेजर एनिमेशन स्टूडियो. ही बिल्ड एप्पल इनटू अ मेजर कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड. नाउ मिडास टच. तो जिन बच्चों को मिडास टच का नहीं पता है, मैं इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, सो दैट यू पीपल कैन गेट एक्सट्रीमली बेनिफिटेड. मिडास, ये उस राजा की कहानी है जिन्होंने कभी तमन्ना की थी कि मैं जिस चीज को टच करूं वो सोना बन जाए. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को टच कर लिया, वो गोल्ड की बन गए, तो बहुत तड़पे. तो भगवान से कहा मुझे माफ कर दीजिए, अपना वरदान वापस ले लीजिए. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बीच में बहुत सारी बातें, वो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो. तो उन्होंने लुकास फिल्म से वो पिक्सर के को टेक ओवर कर लिया. Over the following decade, Jobs built Pixar into a major animation studio. Among other achievements, produced the first full-length feature film to be completely computer animated, Toy Story. Who can forget Toy Story? मैंने ही Toy Story 6-7 बार देखी है. And later, Cars. Cars आज भी देखोगे तो आपको फ्रेश लगेगी. Now this was what the quality of Steve. Pixar's public stock offering that year made Jobs for the first time a billionaire. Now this is what a true entrepreneur is. ये एक सच्चा entrepreneur. Loss हुआ, no worries, I'll start something again. Believing in oneself. He eventually sold the studio to Disney Company in 2006. Rise of Next and Pixar. Back to Apple. अब कहाँ चल पाता एप्पल स्टीव के बिना? कहाँ चल पाता बच्चों? जानना बहुत जरूरी है इस चीज को, समझना भी बहुत जरूरी है. हम एंटरप्रेन्योर का ट्रेट पढ़ रहे हैं विद द केस स्टडी ऑफ स्टीव जॉब्स.
कि ये होते हैं entrepreneur। मैं चाहता आपके साथ चैप्टर्स भी स्टार्ट कर सकता था, पर मेरा विजन ये था कि मैं पहले बच्चों को कुछ ऐसी केस स्टडीज या सारी केस स्टडीज पढ़ा दूं, ताकि जब आप चैप्टर्स करें ना, तो आपके पास कोई भी डाउट ना रहे, जो आपको चीजें क्लियर ना। अब हम बैक टू एप्पल, वापस एप्पल बुलाए गए। इन लेट 1996 एप्पल लोडेड बाय ह्यूज फाइनेंशियल लॉस एंड ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, बंद होने वाली थी 1996 में एप्पल। Hired a new chief executive, semiconductor executive Gilbert Emilio. He played the key role. When Emilio chose next step, buying Steve's company for more than $400 million and bringing jobs back to Apple as a consultant. तो अमिलियो ने नेक्स्ट स्टेप को चूज कर लिया, उन्होंने उसको खरीद लिया स्टीव से, और कहा कि अगर आपने ये डेट स्ट्रिकन कंपनी को फिर से उबारना है, तो आपको स्टीव को वापस बुलाना पड़ेगा। He came back to Apple as a consultant. Jobs quickly forged an alliance with Apple's erstwhile foe, the Microsoft Corporation, and simplified the company's product. Beautiful. एक entrepreneur के लिए ना कोई भी दुश्मन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जॉब्स ने जैसे ही एज अ कंसल्टेंट एप्पल इंक को ज्वाइन किया, he developed a relationship with Microsoft, जो उनके फो है, दुश्मन है, द माइक्रो, और आपसे कॉम्पिटिटर कंटेंडर कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, एंड सिंप्लीफाइड द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन। जिस टाइम उन्होंने एज अ कंसल्टेंट वापस ज्वाइन किया था एप्पल को, तो बच्चों उस टाइम एप्पल में इतने सारे प्रोडक्ट्स चल रहे थे कि एप्पल themselves wasn't aware that which sort of products they are making। तो उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को एक तरफ किया, हटाया, और 3 प्रोडक्ट्स को रखा अपने साथ, और हेल्प ली इसमें माइक्रोसॉफ्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट। और बच्चों जब सिंप्लीफिकेशन होती है प्रोडक्ट्स की, तो पीपल नो वेयर टू पुट देयर फोकस ऑन। और जब एक कंपनी के पास कई 100 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यू कैन नॉट पुट फोकस ऑन एनी ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, he also engineered an award-winning advertisement campaign that urged potential customers to think। थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं, देखिए उन्होंने एक एड बनाया था, थिंक डिफरेंट, ब्यूटीफुल है। मैं उस एड को कई बार देख चुका हूं, और मैं अपने प्रोग्राम्स में उनको दिखाता भी हूं लोग, इन ऑर्डर टू एनकरेज देम। और बच्चों सबसे बढ़िया बात क्या है, पूरा एड है ना ब्लैक एंड व्हाइट, जहां में उन्होंने चार्ली चैपलिन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, पिकासो, और बहुत सारे ऐसे लोगों को दिखाया है जिन्हें सोसाइटी ने कभी मिसफिट्स माना था, बट दे हैव चेंज द होल वर्ल्ड। सो उन्होंने थिंक डिफरेंट एक प्रोजेक्ट बनाया, एंड एनकरेज पीपल टू बाय मैकिन्टॉश। फिफ्थ पॉइंट, जस्ट एज इंपॉर्टेंट व्हाट ही डिड, I'll do it once again. Fifth point, just as important is what he did not do. Apple computers में एक belief है बच्चों, वो हमेशा ये कहते हैं, we always praise ourselves for things we do and equally praise ourselves for things we do not do, we avoid doing। तो ये जो पॉइंट है ना, जस्ट एज इंपॉर्टेंट इज व्हाट ही डिड नॉट डू, और उन्हें क्या नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज व्हाट मेड एप्पल ब्लूम एंड ग्रो। He resisted the temptation to make machines that ran Microsoft Windows operating system। तो उन्होंने कहा हम Windows यूज नहीं करेंगे, हमारे operating systems are going to work on a software which we will create and we will use it, make people to use it। बट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं। आज भी आप जब एप्पल मोबाइल फोन यूज करेंगे, तो वो अगर आपने उस पर कोई छोटा एप्लीकेशन भी खोलना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया मैं इसे खोल लूं, आपकी परमिशन, आप कहेंगे यस, आपका फेस वो रीड करेगा, देन इट विल ओपन इट, अदरवाइज इट विल। दिस इज व्हाट दिस standards are, were, and I believe will be। Sixth point, Jobs believed that Apple, as the only major personal computer maker with its own operating system, was a unique position to it।
सो उन्हें लगता था कि अगर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अपनी एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो वी कैन मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्गर देन अदर कंटेंटर्स। पर अगर किसी का यूज करेंगे ना, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना पड़ेगा, विच आई बिलीव इट्स for Steve it was very challenging. So entrepreneurs are different people with a very strong laser like focus. They are focused, they have a perspective, and above all, the most important of all the things is self belief. I can. Let's move on. This is the last point, health issues. तो मैं ये मुझे बहुत टचिंग लगता है। मुझे मतलब इसमें एक लॉस नजर आता है फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। Health issues in 2003, Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. Nature is smarter than we think we are. It is smarter than us. हम जो मर्जी चाहे कर लें, but nature is doing its. तो 2003 में उन्हें डायग्नोज हुआ पेनक्रियाटिक कैंसर। He put off surgery for about 9 months while he tried alternative medicine approaches. तो उन्होंने ऑपरेशन को कई दिनों तक, 9 महीने तक अवॉइड किया और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से काम चलाया। एक साल बाद in 2004 he underwent a major reconstructive surgery known as Whipple operation. तो एक साल बाद उन्होंने विपल ऑपरेशन करवाया, सर्जरी करवाई अपनी। फॉलोइंग अ शॉर्ट रिकवरी, जॉब्स रिटर्न टू रनिंग एप्पल। तो वापस आ गया एप्पल में, से चलाना शुरू कर। तो ये 1997 के जॉब्स हैं, हेल्दी। फिर थोड़ा सा डिटीरियरेट हो गया 2004 में, और 2010 आते आते ही डिटीरियरेटेड। ये बहुत टचिंग है। Throughout 2008, Jobs lost significant weight. उनका वेट बहुत बुरी तरह से गिर रहा, which produced considerable speculations, and his cancer was back. That his cancer was back. तो लोग अंदाजे लगा रहे थे कि इनका वेट इसलिए गिर रहा है कि इनका कैंसर वापस आ गया। Perhaps more than those of any other large corporation, Apple's stock market shares were tied to the health of its CEO. तो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे एप्पल पे, उनके बिलीव था टिल द टाइम स्टीव इज देयर, तो द कंपनी इज ग्रोइंग। एंड अगर इन्हें कुछ हो गया तो कंपनी में जो हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी माइट लूज इट्स वैल्यू एज। तो जैसे ही लोगों ने उनकी हेल्थ के बारे में सुना, तो उनके शेयर का प्राइस गिरने लगा, which led to demands by investor for full disclosure of his health. तो इन्वेस्टर्स ने कहा भैया हमें पूरा बताओ कि उनकी हेल्थ कैसी चल रही है, whether he is going to continue or not, we need to know everything. Point number 7. In June 2009, the Wall Street Journal reported that Jobs had received a liver transplant the previous year. तो उनके लिवर को ट्रांसप्लांट किया गया, और ये न्यूज बताई गई वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर। और अब the last 2 points. Jobs came back to work on June 29, 2009. Fulfilling his pledge to return before the end of June. उन्होंने कहा था कि मैं ठीक होकर जून से पहले वापस आ जाऊं। In January, very, very important. I'm getting goosebumps now. In January 2011, however, Job took another medical leave of absence. In August, he resigned as CEO and became chairman. He died 2 months later at the age of 56. What a profound career. He created a history. Apple. Apple makes world's best mobile phones. And it is not a mobile company. It's not a mobile company. It's a computer company. Very, very. That was what his belief was. And he kept justifying it till the time he was on this. So, bacho, with this, we have come to the end of this case study. And we have discussed these 9 points: introduction about Apple, founding Apple, the role of Steve Wozniak and Steve Jobs. He was the first entrepreneur to start that era of personal computers.
John Scully from PepsiCo, insanely great campaign, exit from his own company, then started Next and Pixar, back to Apple, and then health issues, and then he passed away. तो बच्चों, कॉल टू एक्शन ये है कि ये सब पढ़ने के बाद the concept, the trait, the concept of Steve Jobs and the way he started Apple and the way he, made it a multinational and the way he served his customers. You get to know that. You've understood that. And next call to action is that come what may be the challenges and circumstances are, you have to attend the whole case study, so that you can properly answer the questions that I'm going to ask, you know, uh, after I'll end this case study. So 10 questions I'm going to ask in every case study, so that you people can get extremely benefited and can write very well in the examination. तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों विद हिंट्स. मैं पूरे क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं दूंगा आपको, इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, बट यस मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और के हिंट साथ साथ दूंगा. तो हियर आर दीज क्वेश्चंस आंसर्स विद हिंट्स. लेट्स टेक अप द फर्स्ट वन. स्टीव जॉब्स इज इन फुल स्टीवन पॉल जॉब्स. ये क्वेश्चन कई बार आ चुके एग्जामिनेशन में. बॉर्न February 24th 1955. जरा सा चेंज क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है 1957. तो बच्चे जज नहीं कर पाते, तो आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है. इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस, डाइड October 5 2011. और कई बार यहाँ लिख दिया जाता है 2010 और आपको लगता है शायद सही. तो एक्चुअल में ये दोनों नंबर्स गलत है और जो स्टेटमेंट है वो सही है. और आपसे पूछा जाता है जनरली whether this statement is true or false, and you have to write it down true. Next question. He was the founder of Apple Computers Inc., now Apple, and an amazing entrepreneur, a charismatic pioneer of the personal computer era. Whether true or false, you have to say true. Third question. Jobs was raised by dash parents in Cupertino, California, located in what is now known as Silicon Valley. तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें अडॉप्ट किया गया था. तो पेरेंट्स पर अडॉप्टिव पेरेंट्स. तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उनमें से आपने एक ऑप्शन चूज करना है, दैट इज अडॉप्ट. फोर्थ क्वेश्चन. He dropped out of the Reed College in Portland, Oregon, took a job at Atari Corporation as a video game designer in early which year? 1970s. The Apple I, as they called the logic board, was built in the Jobs family garage with the money they obtained by selling his dash minibus. तो कई लिखी जा सकती है, Volkswagen, Mercedes, BMW. तो आपको पता होना चाहिए it was a Volkswagen minibus जो उन्होंने बेची. Sixth question. Jobs was not the first entrepreneur to understand that the personal computers would appeal to a broad audience. तो पहले entrepreneur नहीं थे क्या? पता होना चाहिए वही पहले थे. तो आंसर इज 4. Seventh question. In Dash, the company had a record-setting public stock offering. तो किस साल में उनकी पब्लिक ऑफर्स गए थे, आईपीओ उन्होंने लॉन्च किया था? तो इन 1981. Eighth question. In 1983, it made the quickest entrance into the Fortune which 500 list of America's top companies. So 500 is the right answer. In 1983, the company recruited PepsiCo Inc. President John Scully to be its chief executive officer. And the last question. In January dash, however, Jobs took another medical leave of absence. In August, he resigned as the CEO and became chairman, and he died 2 months later. तो किस साल में हुआ था? 2011. तो बच्चों ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. आप केस स्टडी पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते. और मेरा मानना यह है कि अगर आपने इतना कर लिया तो यू विल फील योर सेल्फ इक्विप्ड
and knowledgeable to answer all the questions from the case. So with this, thank you very much. We have come to the end of today's case studies, today's class. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. Within 24 hours, I'm going to answer back all your questions. So these are the links that you can follow me on, my profile link, and the link to my other channels as well. So it's a presentation by Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. So, bacho, I hope this will work. I'll keep continuing making exclusive content for all the students, and we'll try to give you the best quality content as we can. So, till the next time we'll meet again. Bye bye for now. God bless you all. Keep studying and keep achieving your goals. Thank you very much.